गर्दिशों में रहती बहती गुजरती जिंदगियां हैं कितनी, इनमें से एक है तेरी मेरी या कहीं कोई एक जैसी अपनी। पर खुदा खैर कर ऐसा अंजाम किसी रूह को ना दे कभी यहाँ। गुंजा मुस्कुराता एक वक्त से पहले क्यों छोड़ चला तेरा ये जहां। एक इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक जिंदगी की मौला। एक इस तरह क्यों बुझी मेरे मौला, एक जिंदगी की मौला। 2 दिसंबर की रात हम सो रहे थे, मुझे थोड़ी मालूम था ये क्या निकला क्या नहीं। जब आदमी लोग मोहल्ले के भागने लगे, हम भी भागने लगे, तो बोले गैस निकल गया, इंजन कार्बाइड। जो भागे वो मरे, तो बिस्तर में थे कुछ बिस्तर में ही रह गए सोते हुए। रात को हम लोग खांसते हुए उठे, जैसे मैं अपने घर की खिड़कियाँ खुली रखता हूँ हमेशा, तो जाहिर है गैस जो है घर में भरी हुई थी। सबके सब उठ के बैठ के खांसने लगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। लोग जो थे वो घबराहट के मारे बाहर आ गए। बस उसके बाद लोगों को समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्योंकि भगदड़ मची। अब भगदड़, मैं तो बीमार पड़ा था, मुझे बुखार आया हुआ था। मेरी सिस्टर ला इधर गई वो देखने के लिए, ये लोग इधर गए, धीरे धीरे गैस बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर लोगों ने यहाँ सामने रहते थे, वो इसके यूनियन कार्बाइड में काम करते थे मशकूर, तो मशकूर आए, कहने लगे कि साहब तो यूनियन कार्बाइड से गैस निकली है और वो बहुत जहरीली गैस है। यूनियन कार्बाइड के बारे में किसी को पता भी नहीं था कि आप कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा सा सवेरा होने लगा तो हल्ला मचता चला गया। लोगों ने पूछा, कुछ लोग आए, अरे कहने को लोग बहुत मर गए भोपाल में, तो बहुत लोग मर गए भोपाल में, बहुत लोग मर गए भोपाल में। अब वो सवेरे तक हम लोग सेटल डाउन जब तक हुए तो फिर पता लगना शुरू हुआ कि शहर में कई हज़ार लोग मर चुके थे, जानवर मर चुके थे। लोग जो थे वो घबराए हुए तो थे। 11 बजे के उन्होंने अनाउंस किया तकरीबन 9 बजे के आसपास कि गैस ख़त्म हो गई है, अब आप अपने घर को चले जाइए। वो चले गए। उसके बाद 11 बजे फिर अफवाड़ की गैस निकली है, तो सब बाहर निकल के हैं जी मार्केट में बैठे हुए हम लोग, ये चलाओ है ना, वहाँ बैठे सब लोग इधर उधर बिखर गए थे। मतलब इतना कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं मालूम था। Even the administration did not know कि what kind of gas it was, या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। Very difficult to explain my feelings because we are feeling so helpless. This is for the first time in all of my in my total span of 3 or 4 years as a doctor, that when I am feeling so helpless that the children are dying in front of me and I can't do anything much. Regarding whatever we are doing here is just symptomatic. We are just trying to reduce the toil of it, but we can't help it. Do you know how to treat them? I mean, do you know the right cure? Actually, we don't know how much effect that gas had caused to that particular individual. We can just try symptomatic. We can see that the heart should work, the respiration should work, but actually how much of damage had been actually incurred during the inhalation of gas, that we don't know. And secondly, we have got limited facilities here, and in those limited facilities and seeing you are also seeing that the crowd is too much here, and among so much of crowd and with limited facilities, it is very difficult. But then also we are trying our level best. We had been able to help quite a lot of them, but those who are very serious or who had been very serious when they came, we couldn't do anything much. This was the irritant gas. So when they inhale, it produced effect on 2 systems. One, it went to the air passages and to the lungs, and secondly, some of it was swallowed, so it went to the gastrointestinal center.
first one produced a sense of choking, so that they felt that they cannot breathe because of the intense irritation of the airways. And this was because of a high concentration of ethyl isocyanate in India. And then subsequently when it went down to the lungs, it produced pulmonary edema. That means there was a lot of fluid in the passages there, and it was just like bubbling through a chimney or something like that. And that's what suffocated them, and some of them died of this acute pulmonary edema. The other effect that it produced was irritation of the stomach and the food pipe, and that resulted in vomiting. And so they consistently went on vomiting and could not swallow anything, which made them sometimes extremely dehydrated. Yes, some of it was absorbed through the lungs, and then it went to the bloodstream and produced long-term effects. And then can produce damage to other parts of the body, which was not that significant as was in the lungs. 1985 के आई थिंक फरवरी मार्च तक हमने जितने भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गैस विक्टिम का, उनके सबके टिश्यू में देयर वाज ए टॉक्सिक सब्सटेंस वाज रिकवर्ड, बट आफ्टर दैट नो टॉक्सिक substance was recovered from the viscera, but their effect was tremendously, its effect was visible in their tissue. So we can say that the death is due to irrespirable cases, there is a neotamamycin poisoning, and it's a complication. क्योंकि जैसे कोई आदमी मिर्ची खा ले तो ये तत्काल देखेंगे तो मिर्ची तो जरूर मुंह में दिखेगा, पर यदि कुल्ला कर ले तो मिर्ची का इफेक्ट दिखेगा, पर मिर्ची नहीं दिखेगा. तो जो भी टॉक्सिक जो सर्वाइव किए, तो सब्सिक्वेंटली दैट ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंस दे हैव बीन मेटाबोलाइज्ड एंड दे हैव एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. टोटल जो पोस्टमार्टम हुए थे 96-97 तक, आई रिमेंबर इट वाज नियरली 18,000 पोस्टमार्टम इन द नेम ऑफ द गैस विक्टिम किए गए. तो ये जो दवाओं का सिलसिला था, ये तो कई दिनों तक लोगों को नहीं मिली. अस्पताल तो मतलब मॉर्चरी थी, वो जो मरघट कहते हैं, मरघट जैसा था. लोगों को ये लगता था कि शमशान में और कब्रिस्तान में ज़्यादा अच्छा लगता है, अस्पताल में तकलीफ होती है. लीपापोती को ये करना चाहते थे कि इस घटना की विभत्सता को कम कैसे दिखाया जाए, या इस घटना में जो हुई है उसमें यूनियन कार्बाइड की गलती बताने के बजाय ये सिद्ध किया जाए कि यहाँ जो कर्मचारी कर रहे थे काम, उनकी लापरवाही से हुआ है. ये लीपापोती का ये मतलब है. और ये इसलिए था क्योंकि यूनियन कार्बाइड को बचाया जाना चाहिए. भाई यूनियन कार्बाइड इतनी पावरफुल थी कि जब एंडरसन को यहाँ आए वो देखने के लिए, यहाँ का मुख्यमंत्री शासकीय विमान देता है और शासकीय विमान से उनको निकाल करके दिल्ली भेजा जाता है और विशेष विमान से उनको अमेरिका भेज दिया जाता है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था. इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई है, एंडरसन देखने के लिए आता है, लोगों के केवल आक्रोश से बचाने के लिए उसको भेजा गया. तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए था. उनको नज़रबंदी में कुछ समय के लिए रखा गया. दिल्ली से फ़ोन आते हैं, फ़ोन आने के बाद शासकीय विमान में उस अपराधी को भेजा जाता है, जिसके कारण इतना बड़ा कांड हुआ है. माने ये यूनियन कार्बाइड को कमज़ोर करने नहीं आ रहे थे, उसके पक्ष को प्रबल करने के लिए आ रहे थे. क्योंकि जितने भी यहाँ पे बाहर के लोग आए थे, उनमें से अधिकांश ने प्रारंभिक रिपोर्टिंग जो की थी, उस रिपोर्टिंग में ये कहा गया था कि कर्मचारियों की गलती है, यूनियन कार्बाइड की गलती नहीं है. जबकि उसके वाल्व नहीं चले थे जिनसे कि सारा पानी निकला था. उसके बाकी जितनी भी मशीनरी की गड़बड़ें थी, और उस मशीनरी की गड़बड़ी में वहाँ कर्मचारी कई दिनों से अपने मैनेजमेंट से कह रहे थे कि भाई इनमें सुधार कीजिए, और उनका सुधार नहीं हो रहा था. Manet was somewhat where the students gained a reputation among the localites of Bhopal. So we have a hostels numbered from 1 to 10. At that time, H1 was the hostel, the first hostel, which was occupied by people. But at that moment, it was completely खाली करा दिया गया था कि बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं. So वहाँ पे जितने भी अफेक्टेड पीपल थे उन सबको रखा गया. पीपल डाइड देयर
and because of lack of hospitals in Bhopal at that time, because of such a huge crowd was affected by gas, तो उस वजह से वहाँ पे treatment वहीं हुआ, and few of the people they even said कि graveyards तक full हो चुके थे, इतने people died, so many people died. So as a result, the garden area of our hostel was used as a graveyard. पहले घर था जिसमें एक ख़त्म हुआ था, हमारे घर से हमारा भाई ख़त्म हुआ था, हमारे घर के बाजू में 5 मौतें हुई थी, उसके बाजू में 5 हुई, उसके बाजू में 5 हुई, समझ लो 11 मकान में कम से कम 50 लोग ख़त्म हुए थे। तो कौन आंकड़ा लगा सकता है कि पूरे मेले में हम नहीं बता सकते कितने ख़त्म हुए हो। अस्पताल में जब लोग गए तो पता लगा कि जैसे वो कपड़े तय करके अपन धोबी के यहाँ रख देते ना, ऐसे लाशें थी। ये तो बिखरी पड़ी थी रोड के ऊपर, मेडिकल कॉलेज की उसमें जो भागे थे इलाज के लिए, जो जिस वजह से। और इसके बाद ये था कि कहीं उन्होंने चत्ती जैसी उससे लाशें रखती थी, और फिर बेचारे लोग जो बच गए थे वो अपने ढूंढने निकले रिश्तेदारों को, तो उन्होंने उस ढेर में से कुछ लोगों का अलमारी थे उनको निकाला, अभी भी जिंदा है शायद, अब पता नहीं कौन थे वो लोग। तो वो जो एक बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था। दुनिया की हिस्ट्री में आज तक ये नहीं हुआ है कि किसी माँ ने अपने छोटे से बच्चे को फेंक दिया। भोपाल में हुआ है। सो देयर वाज नो वन टू, अरे भोपाल तो उस रात तो यतीम था, उस रात तो यतीम था हमारे। यूनियन कार्बाइड का ये कैसा कहर है, घुल रहा सांसों में अब तक जहर है, लग रहा लाशों का अब तक ढेर है, हर तरफ फैला अब भी अंधेर है, गुनहगार को सजा अब तक मिली नहीं, मौत के आगे जिंदगी की चली नहीं, बांट कर मुआवजा सोचते एहसान कर दिया, कार्बाइड के जहर ने शरीर को शमशान कर दिया, बीमारियां कैसी अब हमको घेर रही, चेहरे से हर की मुस्कान छीन रही, हर दिन अस्पतालों के चक्कर काटते, दिन को तड़पते रातों में जागते, यूनियन कार्बाइड का ये कैसा कहर है, घुल रहा सांसों में अब तक जहर है। क्योंकि अब जनता कोई आंदोलन करेगी नहीं, जनता आंदोलन करते करते थक गई। अब वो कहती भैया जो मिल रहा है उससे गुजारा करो, जो बाकी अस्पताल में इलाज करा लो, प्राइवेट में करा लो। अब जनता भी 30 साल तक, अब पीढ़ी बदल गई, 2-3 पीढ़ी आ गई, तो मामला ठंडा हो गया। हम तो मांग रहे हैं 20 वाट का पैसा दो, कहले अब खत्म हो गया, अब कहाँ से दो, सब मुआवजा खत्म हो, ठीक है भैया। अब जनता की भूल भाल गई है, छोड़ो मेरा भाई, जब बार बार मांगने के बाद नहीं आया तो क्या करेगा। वो केस जो यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट में पड़ा है उसमें आप पार्टी बनिए, और ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के केस का तर्क देते हुए उस अमेरिकन कंपनी को जिसने खरीद लिया है, उस डाउ केमिकल से हजारों हजार करोड़ का मुआवजा लेकर आइए, जिससे पर्यावरण भी बचाइए और इन गैस पीड़ितों को मुआवजे की राशि भी दीजिए। ये तो होता ही है कि एक तंत्र होता है शासन, एक मशीन होती है, वो मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य इसलिए नहीं होता है कि उसमें संवेदनाएं नहीं होती। शासन जो है एक तंत्र है, तंत्र का संचालन करवाने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ये होती है कि जो पीड़ित है हमारे यहाँ वो आग्रह करे, कोर्ट में जाना पड़ता है तो पीड़ित को जाना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो उसका आग्रह प्रबल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो उसको सुनने वाला है या उसके आग्रह के अनुरूप काम करने वाला है उसको संवेदनशील होना चाहिए, तब वो तंत्र को संचालन करेगा। वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ जो आग्रह किए जाते हैं उन आग्रहों में
उन बातों को कम देखा जाता है जो सीधे सीधे मनुष्य के जीवन से या पीड़ित व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। उन बातों को ज़्यादा देखा जाता है जिनसे हमारा प्रचार ज़्यादा। आपने भी एक बात कही थी कि प्रदर्शन हो जाता है, प्रदर्शन होता है, ख़त्म हो जाता है। आपने कभी ये देखा कि उसके नेता लोग जो प्रदर्शन करते हैं तो एक बार जुटाते हैं और जिस रोज उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, इन सबकी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। इस समस्या को बनाए रखने में बहुआयामी चीजें हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो हमेशा समस्याग्रस्त रहना चाहते हैं, वो लोग भी हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं, वो लोग भी हैं जिनको संवेदनशील होना चाहिए और नहीं हो पाते। Well, this is what always both warms and surprises me, that despite everything, the victims today still have faith in our judicial system, if not in the government. And I think it is time that the judicial system, which includes the lawyers, reposes that faith that they've been given and handed. It is a responsibility and an honor. गैस रात का मैं 10-12 साल तक गैस रात का मंत्री रहा, अभी अब मैं नहीं। तो इसका केस वहाँ दायर किया गया अमेरिका में। अमेरिका ने 1 साल के बाद वो केस खारिज करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमको ज्यूरिडिक्शन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री भोपाल में है और फैक्ट्री वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार है केस चलाने का, क्रिमिनल और कंपनसेशन दोनों का। तो उन्होंने कहा या तो केस वापस ले लो, खारिज हो जाएगा तो दोनों दिन से जाएंगे। तो हमने उस सरकार ने केस वापस लिया, यहाँ दाखिल किया। तो यहाँ पर काम 250 करोड़ का इंटर रिलीफ का ऑर्डर हुआ। तो उसके कंपनी का हम इतना नहीं देंगे, उसकी अपील हाई कोर्ट पे किया। हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई हो रही थी, इतने में राजीव गांधी जी ने उसको पूरा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा जो कोर्ट लड़ते लड़ते तुम्हारे जीवन खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा और मुआवजा बहुत देर लगेगी, 30-35 साल में। तो जो जितना है उनको भी नहीं मिलेगा, उनके वारिसों को कितना मिलेगा। और कहता 5 लाख मांगा, किसी ने 10 मांगा। और सरकार लड़ रही थी केस, यूनियन हमारे गवर्नमेंट मध्य प्रदेश लड़ रही थी, CBI लड़ रही थी। तो उन्होंने वहाँ बुलाया राजीव गांधी जी ने हम लोगों को दिल्ली, सभी पार्टी के नेता, उसमें मैं भी BJP का MLA था। राजीव गांधी ने कहा भाई एक ही रास्ता है कि जल्दी मुआवजा मिले तो कंप्रोमाइज़ कर लो, अपन उससे कंप्रोमाइज़ कर लो। तो हमने कहा साहब सब पूरे भोपाल को मिलना चाहिए, 56 वार्डों के हाँ मिलेगा। तो कंपनी ने हमने कहा जब कंप्रोमाइज़ करें कितनी राशि में करें तो हम लोगों को बुलाया जाए, तो पीड़ित तो हम लोग पार्टी। सरकार ने कहा हम बुला लेंगे, लेकिन कब हमको नहीं बुलाया गया। और उन्होंने 712 करोड़ में इंडियन रुपये में सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित एग्रीमेंट कर लिया कि फुल एंड फाइनल। तो उसको 36 वार्डों को मिला पैसा, 20 को मिले नहीं। फिर हम मांग करते रहे, फिर इधर क्रिमिनल केस हुआ तो उनको 2-2 साल की सजा हुई। तो लोगों ने फिर आंदोलन करा, तो फिर अपील में चले गए। The criminal case, the criminal curative rather, what had happened was that originally the accused had been charged, all of them, under section 304 along with other sections. The key section was 304, which is culpable homicide, which requires a higher degree of knowledge that the event was going to happen. Higher meaning that you acted recklessly, the company acted recklessly. Recklessly to the extent that it may have constituted murder. Now, in 1996, the Honorable Supreme Court had passed a judgment which had been assailed, which had read down, largely based on incorrect information that had been placed before it, saying that in fact, based on the evidence, the charge that should be the accused should have been charged with was section 304A, which is negligent murder, which really means that you did not have knowledge of what was going to happen. However, you did act negligently. It was not a reckless act. The maximum penalty under 304A is 2 years. This is what they were found guilty of. The curative petition assailed that 1996 judgment and said that in fact
even though the conviction had taken place, the accused should have been charged under section 304, not 304 part A. What the Honorable Supreme Court finally said was, yes, even if the judgment had been not incorrect, but had been rendered, shall we say, incorrect by subsequent events, that judgment should not have come in the place of any judicial magistrate, judicial officer, amending the charge based on subsequent information that had been placed before. So that is where they went with that, leaving that amendment open to the lower courts. That has, of course, been subject to revision, the charge, as well as there's an appeal happening. But unfortunately, like in all other proceedings, it has not been heard fully and it's been delayed. Union Carbide started its operation in 1969 in its pesticide plant in Bhopal. In 1977, they made 3 solar evaporation ponds where they dumped all their toxic waste during the operation in these solar evaporation pond, which was in an area of 32 acres. These ponds were lined by a plastic lining which broke in 82, which Carbide knew had full knowledge of that, and that is when the issue of water contamination started. All the toxic waste started seeping into the groundwater and started contaminating the water, groundwater and soil of the nearby communities. 82 is when the Carbide knew first. So even if the gas disaster wouldn't have happened, the issue of contamination would still be there because of their faulty waste management practices. Almost 31 years later, what we see is what has been confirmed by scientific reports. More than 17 agencies have done it, that the groundwater of more than 22 communities where more than 50,000 people live have been heavily contaminated by heavy metals, organochlorines, and other harmful substances that cause damage to liver, kidney, lungs, and birth defects in children, and possibly cancers as well. 31 years later, we still do not know the extent of and the depth and the spread of the contamination. The government recognized that there is a problem with the groundwater after a long battle led by the survivors only in 2009. And since then, the contamination continues to spread. There is even today toxic material in the ground which renders a large part of those communities basically uninhabitable, for which neither the government has stepped in to clean up, nor has Dow accepted liability and paid the sums for cleanup. So that is an ongoing crime every day. So the 22 communities is just for now, but we know that the contamination is spreading, and unless and until something is done to contain the contamination, it will just take more and more. It will just poison the water of more and more people living around Union Carbide factory. Even though there are studies, government has not taken any step in order to ensure that Dow Chemical pays for this contamination, or any other agency cleans it up and they bill Dow Chemical. Recently, survivor organizations moved to UNEP, United Nations Environmental Program, and asked if they could carry out an assessment. And that offer was given to Government of India, and that offer has been rejected by Government of India. So just like in the issue of gas disaster, where there is no closure, where people are still suffering, people are still dying, we have a new disaster on our hand which predates the gas disaster, where more and more people are being poisoned by it, more children are being born with birth defects, and more poison is being spread by the same corporation that was responsible for the disaster, and government continues to look the other way. 31 साल 32 साल होने को हो गए, अभी तक करा नहीं। अब क्या करेंगे? एक हफ्ता 15 दिन दिल्ली में रैली लेके जाते हैं, वहाँ पड़े रहते हैं, घूम के प्यासे, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, कोई सुना नहीं है। उधर के बोल देते हैं हाँ तुम्हारे को पैसा मिलेगा, तो यहाँ आ जाते हैं। अब 1 साल होने को आ गई, हम गए थे, यही दिनों में गए थे, 1 हफ्ते में आया, कोई सुना नहीं थे। बोले 1 लाख रुपया मिलेगा, हमको तसल्ली चलो मिलेगा, सही अपने इलाज करवाएंगे, कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये कई सालों तक चलती रही। फ्री अस्पताल 11 चल रहे हैं, 15-16 डिस्पेंसरी चल रहे हैं, फ्री अस्पताल में फ्री इलाज है, सारी दवाइयाँ फ्री हैं,
इंडोर हॉस्पिटल है, इतने सरकारों ने क्या, केंद्र और प्रदेश ने, ये समस्या कभी खत्म नहीं होती। वो जो मौत भई पे तो मर ही गए, मनवावे तक मर रहे हैं आदमी बीमार होकर, उनकी कोई सुध ही नहीं है सरकार को। जो बड़ा हॉस्पिटल बना के रखा है मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ जाओ तो कोई उससे दवाई गोलियाँ नहीं देते हैं, जब तक कि ये नहीं पता करते कि भाई इसको क्या बीमारी है, इसे शुगर तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, कोई जाँच वाँच नहीं, हाथ तक नहीं लगाते, क्या हो गया निगाह उन्होंने जाओ। अपने ही पैसे से इलाज करवाओ अस्पताल में, तबीयत खराब हो तो। अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 50 करोड़ में अस्पताल बनाया, उसमें डॉक्टर ही नहीं, मशीन है, डॉक्टर नहीं। अब भारत सरकार के अंडर में, अब भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर कमेटी बनाई और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई 2004 में कि वो जो भी काम हो रहा है गैस विक्टिम्स के बेनिफिट के लिए, ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट और जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस पर निगरानी रखे और उस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजते रहे। दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं और समस्त प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है, कुछ हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं जो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सिटी स्कैन, MRI वगैरह नहीं है और विशेषज्ञ भी नहीं है। इस हेतु अभी टेंडर किए जा रहे हैं और कुछ ही समय में हाई एंड इक्विपमेंट्स भी परचेज कर लिए जाएंगे और टेंडर में ही ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि स्पेशलिस्ट भी साथ में हायर कर लिए। क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है कि दवाएं हैं लेकिन दवाओं का स्टैंडर्ड वो ऐसा नहीं है। लोकल परचेज वाली दवाएं हैं और जो लघु उद्योगों में जो बन रही हैं भोपाल मध्य प्रदेश में, वहाँ की दवाएं हैं। तो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं है, क्वालिटी मेडिसिन्स नहीं है और डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट नहीं है। देखिए ऐसा है कि समय समय पर केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती है इक्विपमेंट्स वगैरह करने के लिए, हॉस्पिटल्स के उन्नयन के लिए, लेकिन जो लगातार इलाज चल रहा है गैस पीड़ितों का, लगभग 5,80,000 लोग हैं जिनका आजीवन निःशुल्क उपचार होता है, कैंसर का निःशुल्क उपचार होता है, इवन किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह का उपचार भी निःशुल्क किया जाता है। उन सब के लिए जो फंड्स होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ये बड़ा स्केची अप्रोच है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक और वो भी ऐसा सीजन पॉलिटिशियन जिसका कि भोपाल के सोशल लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा और जो गैस पीड़ितों की समस्याओं के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा और गैस राहत मंत्री भी रहे, और वो व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो अस्पताल हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम को टेकअप करने के लिए अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। उसका एक ही उदाहरण काफ़ी होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो अस्पताल 6 बड़े अस्पताल और जो काफ़ी 8-10 डिस्पेंसरियाँ काम कर रही हैं उसमें किसी में भी पल्मोनरी एक्सपर्ट नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू में जो आइडेंटिफाई की गई थी वो सांस की समस्या की थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। और एक पूरा अस्पताल जहांगीराबाद में बनाया गया था जो पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर ही कहलाता था, जिसमें एक दिल्ली से डॉक्टर जो चेस्ट स्पेशलिस्ट काम करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से स्टेट गवर्नमेंट पिछले कई सालों से एक भी पल्मोनरी एक्सपर्ट वहाँ अपॉइंट नहीं कर पाई। तो ये बड़ी भारी विफलता है। स्टेट गवर्नमेंट से एक नया एक्ट बनाया गया, डिसास्टर एक्ट 1984 भारत सरकार ने, और कहा कि हम सारे गैस पीड़ितों के केस लड़ेंगे और उनके एरियो की साफ सफाई का सारा पैसा हम देंगे, क्योंकि वो मामला जब केंद्र ने ले लिया अपने हाथ में तो जो पैसा वहाँ से मिलता था उसमें 25% स्टेट गवर्नमेंट का और 75% भारत सरकार का। तो वो पैसा 900 करोड़ कभी 1000 करोड़ मिला तो वो खर्च होता रहा उसे विकास में उनके, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ वहाँ पानी शुद्ध मिलता है। Government of India has been sending money to Government of Madhya Pradesh to provide economic rehabilitation to the Bhopal gas victims. More than 80 crores has been spent so far in economic rehabilitation, yet the Government of Madhya Pradesh cannot even claim that it has spent
it has rehabilitated 80 people in spending all this money of 80 crores. What we have seen that the money has gone mostly into the pockets of bureaucrats and the ministers, but nothing has happened for the gas victims. And most of the plans in order to do economic rehabilitation are so far removed from the reality. There are people who are sick who cannot do hard labor. There are people who are illiterate who cannot learn computer courses and things like that. तो भारत सरकार ने एक कोच फैक्ट्री बनाई उधर भानपुर के पास, उसमें 1,000 लोगों को काम भी दिया, लेकिन लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट उतने लोगों को नहीं मिलता जितने ट्रेड में। फिर हमने कहा तो अपने अपने घर में सिलाई केंद्र खोलो या कपड़े की मशीनें लगा लो या अन्य प्रकार के जैसे साइकिल मरम्मत, टीवी मरम्मत, उसकी लोन दिया है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। तो ये काम बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा है। इस मेले में कोई ऐसा एक सेंटर, जैसे पहले एक सिलाई सेंटर खुला था, औरतें मेले की जाती थी, सिलाई करती थी। आज अगर मसाला, अचार या कुछ भी और भी जैसे कर सकते हैं तो अपने मेले में तो आके वो ये काम करवा सकते हैं कि आप लोगों के लिए, हमने औरतों के लिए खोला है, आप यहाँ काम करो। स्कूलों में उन्होंने के साथ बच्चों को किताबें मिलेंगी, उन्हें ना जैसे साल की कुछ सुविधाएं देंगे, तो उसके लिए इतने सारे कानून निकाल दिए। उनके साथ जन्म पत्र बनवाओ या है ना जाति प्रमाण पत्र बनाओ, तो उसके लिए उनका 50 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ। किसी का नहीं है, परमिट पहले बनते थे, जमा कर लिया करते थे जब, तो क्या पुराना रिकॉर्ड लाए। अब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनका 50 साल पुराना रिकॉर्ड लाओ, कहाँ से लाएगी गरीब। और फिर अब बहुत से किराएदार हैं, आज इधर रह रहा है, कल उधर का मकान खाली कर, कई सामान ऐसे होते हैं, गुम जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो पुराना 50 साल पुराना। सरकार से बहुत कुछ कर सकती थी, जो लोग पीड़ित हुए उन्हें रोजगार दे सकती थी या उनका पुनर्विकास, इलाज वगैरह ये सब कर सकती थी। जैसे काम भी करो, मजदूरी करो तो काम नहीं बनता है, क्या खाएंगे, मजदूरी भी नहीं बनती बेटा। गई फेफड़े खराब हो गए तो गैस से हुए और कुछ उसे नहीं, चलते नहीं बनता, सांस फूलती है। हम तो हमारे बता रहे हैं ना, हमें सांस फूलती है, हम जीनों पे चढ़ नहीं पाते, अगर चढ़ जाते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट तक सांस फूलती है हमारी। But this could have been a place where the government could have shown a lot many environmental friendly alternatives and provided rehabilitation, but that has not happened. I mean, big money has been spent on building infrastructures like the technical institution, like the industrial sheds. Crores and crores of rupees have spent, and these infrastructure, because commission is being made in building these infrastructure, but no real rehabilitation has happened. Recently again we saw a big scandal where gas victims were going to be given training and then jobs, but then again we found that no gas victim was actually given a job, and many of them were given fake letters. All of these things are not hidden by the government. This is all out in the open. That we have RTI papers to prove that there is massive corruption, but there is no political will either by the central government or by the state government, regardless of the parties that are in power, to actually provide a life of dignity for the survivors and to have a vision and to care for people, that these people need meaningful economic rehabilitation, and that's why the plans have always failed. सरकार ने तो इनफैक्ट कुछ भी नहीं किया अपने पास से, और क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा पैसा तो यूनियन कार्बाइड से ही लिया था, और उसको भी बहुत किस्तों में, इनफैक्ट वो जो अमाउंट दिया था यूनियन कार्बाइड ने, उसका इंटरेस्ट से ही सरकार अभी तक सब कुछ करती रही। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि अगर गैस कांड हुआ था, अगर यूनियन कार्बाइड आपको नहीं देता पैसा एज ए जो सिटीजन, तो गवर्नमेंट इंडिया के है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या उनके लिए कुछ भी नहीं करती? So social rehabilitation is another head where government of Madhya Pradesh takes money and has produced literally nothing. I mean, if you go way back in the 90s, where the first time they took money was to build these houses for the widows, about 2,000 some houses were built, and if you look at the condition of these houses, one can see no one would want to live in these houses. Everything in those houses have fallen apart. And the other thing that we have seen, that they have used this money to actually
do no meaningful rehabilitation for the gas victims, but for the city. So like the graveyards get built, the schools get built, public toilets get built. So as if the Bhopal disaster hadn't have happened, the city wouldn't have seen public toilets or graveyards or the parapet walls of the lake or things like that. गैस राहत का पैसा सुलभ शौचालय के लिए खर्च नहीं किया जाए ऐसा कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है. एक विशेष प्रकार की आवश्यकता महसूस की गई होगी और पैसा आया होगा तो खर्च किया गया होगा. So again, there is no vision that people who have suffered due to this disaster need a separate plan, need a vision in terms of rehabilitation. Just now, they're giving a pension of 1,000 rupees to widows who have lost their husbands as a result of the disaster. But again, that pension is for 5 years, as if after 5 years they will no longer be widowed. So there is this total lack of there's total disrespect and lack of vision towards people, and basically care that these people do not matter, and every time people protest and survivors protest, there is some kind of dole thrown at them, but nothing meaningful that will bring any change or have an impact in their long-term lives. That it is the corporate crime is the most ubiquitous, most prevalent, most invisible and most damaging to our planet and people than any other crime you can think of. No comparison at all. Something we all need as a society to answer as we further develop is that when corporations are very essential, and this is not a problem India faces alone, are very essential, they have rights, they have sometimes bigger rights than individuals too, they certainly have more economic power. Should they not be held to a standard of justice at least equivalent to that what a normal human being is held, if not higher, because the potential to do harm is higher. Unfortunately, the legal tools that we have even now are not being used, again I will say, either due to incapacity or unwillingness, probably both. The question centrally is that we give a lot of civic rights to corporations. They can come to court and say that my right to equality has been taken away. They can come to court and say my right to property has been taken away. Now, a corporation is deemed to be a legal person. Now, if you commit a wrong, civil or criminal, you can't change your name and get away with it. That is essentially what Dow has sought to do. To mutate Union Carbide's identity into another corporation and leave the liability behind. And that is a question whether that should be allowed. And that legal question has not been posed. And Dow has structured Union Carbide, sought to conceal how Union Carbide and Dow trade in India, primarily to avoid the jurisdiction of this court. Even though one of the conditions of the settlement, 1992 settlement, was that Union Carbide would participate in the judicial process ongoing, of which only the criminal case then remained in India. The media was isolating Bhopal historically and geographically. We needed to break that isolation. That, and second was we needed to common people to understand it's not something that happened to other people. Yeah? It is the more like in fact the other is also you. That is the part that we wanted to bring together. Then so that it is, and secondly it also alters the way you relate to Bhopal people. In one you are showing pity. In another, when you stop looking at Bhopal people as the other, you are more in like solidarity, and it's not pity, which is a terrible thing to have. So it came through different pathways, the realization that this is what needs to be done, and we feel that it has been accepted by bigger because of the changing scenario also in many situations where people are more and more people in more and more areas of the world are beginning to feel how they are getting Bhopalized, so to speak. That when you let one person who's responsible for one of the greatest industrial disasters get away with it, right? It is like not ensuring, but not sending a warning to others who may do the same. Today, we have chemical industries, we have other industries which deal with toxic
chemicals. Chemicals are very much a source of how we produce things, and unless stringent safety standards are followed, this will happen again. It's an inevitability. And if we as a society don't show the organization, if our government doesn't show the ability to implement the laws that exist, then it is inevitable that there will be another Bhopal disaster, and all we will be able to blame is ourselves for not acting in the first one. Because remember, those who don't remember history are condemned to repeat it.